Hello students, we are going to solve a question of a number which has more than 3 digits. ठीक है? So how can we find the square of a number which has more than 2 digits? ठीक है? कोई भी नंबर जिसमें 2 से ज़्यादा डिजिट्स हो उसके स्क्वायर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे विदाउट मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, 2 डिजिट के लिए तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू फाइंड आउट स्क्वायर ऑफ ए नंबर व्हिच हैज मोर देन 3 डिजिट्स. ओके, सो लेट्स टेक अ नंबर 123. सो आई वांट टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 123. In this number there are 3 digits, so we have to draw 3:3, that is 9 square here. ठीक है, हमको यहाँ पे 9 स्क्वायर ड्रॉ करना पड़ेगा. अगर 2 डिजिट का नंबर होता तो 2 मीन्स 4 स्क्वायर ड्रॉ करना होता. इसी तरह से अगर 4 डिजिट का कोई नंबर है तो 4 × 4 that is 16 स्क्वायर हमको ड्रॉ करना पड़ेगा. ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, 3 is 9 स्क्वायर हमने ड्रॉ किया. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 मीन्स टोटल 9 स्क्वायर. ठीक है, नाउ ड्रॉ डायगोनल ऑफ ईच स्क्वायर. जितने भी स्क्वायर हम ड्रॉ करेंगे सबके डायगोनल ड्रॉ करेंगे. ठीक है सर, यानी डायगोनल कैसे ड्रॉ करते हैं, किसी भी स्क्वायर का डायगोनल अगर ड्रॉ करना होगा तो हम क्या करेंगे, जो अपोजिट वर्टिसेस हैं इनको क्या करेंगे, मिला देंगे. क्या होगा, डायगोनल होगा. ठीक है, तो हमने क्या किया, हर स्क्वायर का डायगोनल ड्रॉ कर लिया. नाउ रिप्रेजेंट डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर बाय साइड्स ऑफ द स्क्वायर स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप लेफ्ट. टॉप का जो स्क्वायर है यहाँ से स्टार्ट करेंगे और जो डिजिट्स हमको दिए हुए हैं इन डिजिट्स को स्क्वायर के साइड से रिप्रेजेंट करेंगे. सो 1 इज represented by first side of first square, 2 is represented by sides of second square, and 3 is represented by sides of third square. Now same process is applied here from moving from top to bottom, 1 2 and 3. Now multiply 1 to 1, that is 1, and 1 is to 1, that is 1, and we write 1 as 0 1. So put 0 here and 1 here. Now multiply 1 is to 2, that is 2, 1 is to 2, that is 2, and write 2 0 2 and put 0 here and 2 here. Now in the same way 1 is to 3, 3 0 3. Now 2 multiplied with 1 gives 2 1 is 2, and write 0 2, 2 2s are 4, 0 4, and 2 3s are 6, 0 6. ठीक है, in the same way 3 multiplied with 1 gives 3, that is 0 3, 3 2s are 6, 0 6, and 3 3s are 9, 0 9. Okay, now add each diagonal. ठीक है, this is the first diagonal. In first diagonal there is only one digit, that is 9. We put 9 here and circle it. 9 को हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे, जस्ट उसके नीचे जिस डायगोनल को ऐड कर रहे हैं उसके जस्ट नीचे, और इसको हम क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे. ओके, नाउ एड सेकंड डायगोनल and the digits are 6 0 6, 6 0 6. After adding gives 12, 12 means 1 2. ठीक है, now circle 2 and 1 is left, 1 as a remainder, adding to third diagonal. In third diagonal there are 3 4 and 0, where we add 3 and 4, 3 0 4 0 3, 3 4 are 7, 3 4 7, and 3 10. When 10 and 1 adding here gives 11. Now the unit digit of 11 is circle here, and
In fourth diagonal, the digits are 0, 2, 0, 2. After adding these, we get 4, and when the remainder from the third diagonal added with 4 gives 5. Now circle the unit digit of 0, 5, that is 5, and add the left digit in the next diagonal. In the next diagonal, we have 0, 1, 0, that is 1 after adding, and when 0 is added with 1 gives 1. Now in the next diagonal there is 0, and when 0 added with 1 gives 1. So the digits are 1, 5, 1, 2 and 9. ठीक है, इन सारे डिजिट्स को एक साथ हम लिखेंगे. 1, 5 from here, 1 from here, 2 from here, and 9 from here. ठीक है, so by putting the digits here, we will get the square of 123. Okay, so in the same way we can find out the square of a number which has more than 3 digits. ठीक है, कितने भी digits का नंबर हो, 3 digit, 4 digit, 5 digit, सबका स्क्वायर आप इस मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, इसके पहले हमने शॉर्टकट मेथड यूज किया था. इन शॉर्टकट मेथड बेसिकली हम वहाँ पे 2 डिजिट्स का कोई नंबर हो उसका स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं. बट इन डायगोनल मेथड you can find the square of a number which has 2 digit or more than 2 digit, means 3 digit, 4 digit, 5 digit या उससे भी ज़्यादा डिजिट्स के नंबर का स्क्वायर हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, सो हमने 3 मेथड्स स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए डिस्कस कर लिया है. द फर्स्ट मेथड इज शॉर्टकट मेथड, द सेकेंड मेथड इज ऑब्जर्वेशन मेथड, and the third method is diagonal method. Okay, now move on another method, and the method is easy method to find out the square of a number. Easy method to find out the square of a number. Easy methods of finding squares. Easy methods of finding square. In this method there are 3 types. The first one is find the square of a number which is ending in 5. For number ending in 5. ओके, कोई ऐसा नंबर हो जिसके एंड में 5 हो, अगर उसका स्क्वायर हमको निकालना हो तो हम इजी मेथड यूज करके निकाल सकते हैं. ठीक है, and we can find out square of a number which has 5 in ending. So let us try to find out the square of 65. ठीक है, according to this method the given number has 5 is in ending. So how can we apply this method? ठीक है, how can we apply this method? Basically to find out the square of a number which is in ending 5. ठीक है, तो कोई भी नंबर ऐसा जिसके एंड में 5 हो उसका स्क्वायर हमको फाइंड आउट करना हो, तो बेसिकली इसके लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए 2 पार्ट में इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. वी राइट फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट. ओके,
टू पार्ट, फर्स्ट पार्ट है सेकेंड पार्ट। ओके, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। इस नंबर में एंड में क्या है 5 है और हम जानते हैं कि 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। सो इन द सेकेंड पार्ट पुट 25। यहाँ हमने क्या किया 25 को पुट कर दिया। ओके, नाउ इन द फर्स्ट पार्ट, we use x into x plus 1। ओके, ये फार्मूला हम यूज करेंगे x into x plus 1। व्हाट इज x? x is the 10th digit of the given number। दिस इज x, means x की जगह पे क्या रखेंगे 6 into 6 plus 1, that is 6 into 7। 6 into 7 is 42। So in the first part we put 42। In the first part we put 42। So 42 इस पूरे नंबर के एक साथ लिखिए 4225 is square of 65। Okay, 4225 is square of 65। Now try for another number. Let us take a number 95। Let us take a number 95। We want to find out the square of 95 by using this method। First of all, find out the square of 5, that is 25। So in the first part and second part, in second part we put 25। हमने क्या किया 25 को यहाँ पे प्लेस कर दिया। Now for first part we apply the formula x plus 1। x is 10th digit of the given number, that is 9। 9 into 9 plus 1। Okay, 9 into 10, that is 90। So in the first part we place 90 here, we put 90 here। So square of 95 is 9025। it is your required answer। okay, तो इस तरह से कोई भी ऐसा नंबर जिसके एंड में 5 हो उसको इस मेथड को अप्लाई करके आप उसका स्क्वायर लिख सकते हैं बिना मल्टीप्लाई किए। ओके, नाउ मूव ऑन द सेकेंड मेथड of the given topic, and the topic is squaring number close to 100। squaring number close to 100। ठीक है, कोई ऐसा नंबर जो 100 के क्लोज हो उसका स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए इस मेथड को यूज करते हैं। मींस अगर जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, जैसे हमने 98 लिया, ठीक है, 98 इज क्लोज टू 100। वी वांट टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 98। सो बाय अप्लाइंग दिस मेथड वी कैन फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस। There are two parts in the given in the answer. There are first part and second part। Okay, now in the first part पहले हम यहाँ पे सेकेंड पार्ट को फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड पार्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम ये पता करेंगे कि ये नंबर 100 से कितना क्लोज है। The given number is how much close to 100, means 100 में से अगर हम माइनस करें 100 minus 98 we get 2। and if we take square of 2, that is 4, and 4 को हम लिखेंगे 04।
ठीक है। तो 0.4 यहाँ पे आ जाएगा आपके सेकेंड पार्ट में। पहले क्या करेंगे, हमें पता करेंगे कि जिस नंबर का हम स्क्वायर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो 100 से कितना क्लोज है, ठीक है। तो हमने देखा कि 98 100 से 2 यूनिट पीछे है, यानी कि 2 का डिफरेंस है। फिर हमने क्या किया, 2 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर यानी 4 को हम 0.4 लिखेंगे और 0.4 को हमने कर लिया सेकेंड पार्ट में, ठीक है। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट, इन द फर्स्ट पार्ट the rule says to get the first part of the answer reduce the deficiency still further by the same extent, means यहाँ पे हम ये पता करेंगे कि 98, ठीक है, 98 3 से कितना दूर है, मीन्स हम यहाँ पे 98 माइनस 2 करेंगे। 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 98 100 से 2 यूनिट क्या है, कम है। इसका मतलब कि अगर हमको फर्स्ट पार्ट फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, 98 माइनस 2 कैलकुलेट करेंगे। 98 माइनस 2 दैट इज 96 एंड वी प्लेस 96 हियर। सो 9604 इज स्क्वायर ऑफ 98, ठीक है। एक बार फिर से समझते हैं इसको। 98 का स्क्वायर करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये पता करेंगे कि द गिवन नंबर इज हाउ क्लोज टू 100, मींस 98 100 से कितना क्लोज है। तो 98 100 से 2 यूनिट क्लोज है, मींस हमने 2 का स्क्वायर किया। 2 का स्क्वायर दैट इज 4, और 4 को हमने लिखा 0.4। इस 4 को हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे 0.4। ओके, नाउ चूंकि 2 यूनिट एक्सटेंट है 100 किससे, 98 से, यानी 2 यूनिट दूर है 100, तो हम क्या करेंगे, इस 98 में से 2 माइनस कर देंगे। 98 minus 2 that is 96 and put 96 in the first part, so we get the required result. So a number which is close to 100, by applying this method we can find out square of the given number. Okay, now the third method in the given topic is squaring number, just more than 100, just more than 100. And in this topic we want to find out square of a number which is close to 100 but more than 100. कोई नंबर 100 के क्लोज तो है लेकिन 100 से क्या है, ज्यादा है। जैसे हमको 102 का स्क्वायर पता करना है, 102 is close to 100 but just more than 100. ओके, तो इसको भी, इसका स्क्वायर भी फाइंड आउट करने के लिए प्रीवियस मेथड की तरह से ही मेथड यहाँ पे भी यूज किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट how much for 102 is from 100, means 102 100 से कितना दूर है वो पता करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, 102 minus 100 that is 2 and 2 square that is 4 and 4 को हम लिखेंगे 0.4। तो यहाँ पे अगर इसका स्क्वायर पता करना हो तो यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट and here second part, ठीक है। in second part we put 4 that is 0.4. now for first part the rule say to make first part of the answer increase the surplus still further by the same step, means फर्स्ट पार्ट को फाइंड आउट करने के लिए जितना डिफरेंस है उसको गिवन नंबर में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। नाउ फॉर फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू द गिवन नंबर इज 102 and 102 is 2 more than 100, means
मीन्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे, मीन्स 104 and we put 104 here. So the square of 102 is 10404. This is your required result. Okay, तो हमने कितने मेथड सीखा? पहला मेथड तो वही है कि हम गिवन नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, बट द प्रॉब्लम इज इफ द नंबर इज बिग नंबर, कोई बड़ा नंबर हो, कोई नंबर 1 डिजिट नहीं, 2 डिजिट या 3 डिजिट 4 डिजिट का कोई नंबर हो, तो उसका स्क्वायर करने के लिए अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। ओके, सो इसके लिए हमने क्या किया, द फर्स्ट मेथड इज शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में आप 2 डिजिट्स का कोई नंबर है उसको a + b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करके कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द सेकंड मेथड इज ऑब्जर्वेशन मेथड, ये भी हमने सीखा। द थर्ड मेथड इज डायगोनल मेथड। तो डायगोनल मेथड हमारे लिए बहुत एप्लीकेबल है, बहुत जगहों पे एप्लीकेबल है। अगर कोई नंबर 2 डिजिट का हो वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, या मोर देन 2 डिजिट का कोई नंबर हो वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्टकट मेथड और डायगोनल मेथड में यही एक मेजर डिफरेंस है कि शॉर्टकट मेथड बेसिकली 2 डिजिट नंबर के लिए यूज होता है, ठीक है, बट डायगोनल मेथड को मोर देन 2 डिजिट नंबर की स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मेथड भी हमने डिस्कस कर लिया, और इसके बाद से हमने इजी मेथड डिस्कस किया। इजी मेथड में हमने 3 मेथड्स डिस्कस किया, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी मेथड से, ठीक है, सारे मेथड्स हमने डिस्कस कर लिया है। इन योर एक्सरसाइज 3.3 by using all these methods mentioned in the question you will find out the square of given numbers. Okay, thank you.